خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں خدا کا خادم پاسٹر آصف آپ کی خدمت میں خدا ان کے زندہ کلام کے سلسلے کو لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں. عزیزو, آج میں جس تمثیل کے بارے میں اس تماثیل کے سلسلے میں بیان کروں گا یہ بڑے تمثیل ہے. میں سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ ابھی جو 2 منٹ پہلے میں اسی تمثیل پر کلام بیان کر رہا تھا تو کسی پرابلم کی وجہ سے یہ لائیو پروگرام بیچ میں رک گیا اور میں ایک بار یہ کہتا ہوں کہ اس وقت میں ریور ٹیمز کے اوپر کھڑا ہوں. یہاں پر ہوا کا بہت بڑا پریشر ہے. آپ میرے کیمرے کو بھی دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ ہل رہا ہے. تو برائے مہربانی اگر آپ نیچے کمنٹ میں لکھ دیں کہ آپ کو میری آواز بالکل صاف آ رہی ہے تو میں آسانی سے مزید کلام آپ کے سامنے شیئر کر سکوں گا, کیونکہ مجھے شور نہیں ہے کہ میری آواز بالکل کلیئر آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں, کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ ہوا کا پریشر ہے اس دریا کے اوپر. میں آپ کو دکھاتا چلوں کیونکہ میں نے یہ جگہ خاص طور سے اسی لیے چنی ہے کیونکہ آج میں بڑے جال اور مچھلیوں کی تمثیل کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. آپ کائنڈلی یہ دیکھ سکتے ہیں میں ریور تھیمز کے اوپر کھڑا ہوں اور میرے خیال میں یہ مچھلیوں کے تعلق سے بڑے جال کی تمثیل کو بیان کرنے کے لیے بڑی اچھی لوکیشن ہے. آج کی جو تمثیل ہے فشنگ نیٹ, اس کا حوالہ بھی ہمیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اس کے 13 باب میں ملتا ہے. میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ متی اور اس کا 13 باب یہ واحد باب ہے جس میں یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے 8 تماثیل کو یکے بعد دیگرے بیان کیا اور سمجھنے کا موقع دیا ہمیں آسمان کی بادشاہی کو. اور یہ جو تمثیل ہے آج اس سلسلے کی یہ سیکنڈ لاسٹ تمثیل ہے اور اس کے بعد جو لاسٹ تمثیل ہوگی وہ اس تمثیل کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص اپنے خزانے سے اچھی اور بری نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے, اس کو میں اس تمثیل کے بعد نیکسٹ جب بھی موقع ملے گا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. وہ تمثیل ہمیں نئے اور پرانے عہد نامے کے تعلق سے گہرے بھید ہم پر ظاہر کرتی ہے. تاہم اس تمثیل کا حوالہ میں آپ کے سامنے ابھی پڑھوں گا. متی 13 باب اور اس کی 47 آیت سے 50 آیت تک لکھا ہے, پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لی اور جو خراب تھی پھینک دی. دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا. فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے, وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے. سو عزیزو, آسمان کی بادشاہی سے متعلق جو متی 13 باب میں تماثیل کا سلسلہ ہے یہ اس سلسلے کی سیکنڈ لاسٹ تمثیل ہے اور اس تمثیل سے قبل یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کو بڑی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے. اور خاص طور سے اس تمثیل سے پہلے جو 2 تماثیل ہیں وہ یسوع مسیح کے بارے میں اور ایماندار کے بارے میں ہیں. کھیت میں چھپے خزانے کی تمثیل اور بیش قیمت موتی کی تمثیل. جو کھیت میں چھپا خزانہ ہے وہ یسوع مسیح ہے جس کو پانے کے لیے وہ شخص ارد گرد کی زمین اور سارا کھیت لیتا ہے اور بالآخر اس کو یسوع مسیح مل جاتا ہے اور وہ خوشی خوشی اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے, یعنی اپنی پرانی زندگی کو ترک کر کے یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے. اور جو موتی کی تمثیل ہے وہ ہمیں ظاہر کرتی ہے کہ جیسے یسوع مسیح وہ خریدار ہے جس نے آسمان کی بادشاہی کو چھوڑا اور ہماری خاطر زمین پر اتر آیا اور اپنا لہو دے کر اس نے ہمیں خریدا. جیسے سیپ کے اندر جو ریت کا جو ذرہ ہے جو بے وجود ہے, جو بے قیمت ہے, جو بے حقیقت ہے, جب وہ چلا جاتا ہے تو بیش قیمت موتی میں بدل جاتا ہے. اس سے ہی یسوع مسیح نے اپنی قربانی اپنا لہو دے کر ہمیں بیش قیمت آسمان کی بادشاہی میں بنا لیا. یہ دونوں تماثیل اس سے پچھلے سلسلے میں ہیں, آپ میری فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں, آپ یوٹیوب پر ان دونوں تماثیل کو دیکھ اور سن سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. آج یہ اسی سلسلے کی تمثیل ہے, لیکن یہ جو بڑے جال کی تمثیل ہے یہ بھی آسمان کی بادشاہی کی تمثیل ہے, لیکن یسوع مسیح نے اس تمثیل کو بالکل ہٹ کر مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے. اور ٹوٹل فوراً آسمان جہاں ابھی چند لمحے پہلے یسوع مسیح نے وہ 2 تماثیل بڑے خزانے کی اور بیش قیمت موتی کی تمثیل میں آسمان کی بادشاہی کو خوبصورت بیان کیا, اس کی خوبصورتی کو بیان کیا, اس کی بیش قیمت
निजात को बयान किया, उससे बरअक्स यहां पर यीशु मसीह हमें इंतबाह करता है, सुनने वालों को आगाही देता है कि अगर हम आसमान की बादशाही को बज़ाहिर खुशी खुशी तो कबूल कर लेते, लेकिन उसके मयार पर पूरा नहीं उतरते, तो हमारे लिए खतरा है, हम आसमान की बादशाही से निकाल दिए जाएंगे। अब यीशु मसीह ये तमसील जहां पर बयान कर रहा है वो गलील की झील का इलाका है, और यीशु मसीह ज्यादा खिदमत का जो इलाका था वो गलील के इर्द गिर्द की झील का इलाका था। उस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोगों का जो कारोबार था वो माहीगीरी था। यीशु मसीह के बेशतर शागिर्द जो थे वो माहीगीर थे। सुनने वाले लोग भी माहीगीरी के पेशे से और मछलियों की इकसाम से वाकिफ थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानंद है जो दरिया में डाला गया, जो पानी में समुद्र में डाला गया, और उसने सब तरह की हर तरह की मछली, तमाम इंसानों को, आसमान की बादशाही तमाम रूए इंसान, रूए जमीन पर हर तरह की कौमों और सब लोगों को दी गई, और उस बादशाही का हिस्सा बहुत से लोग बन गए, लेकिन कुछ उस बादशाही के काबिल भी नहीं है। कुछ लोग देखा देखी आसमान की बादशाही का हिस्सा बन जाते हैं, कुछ लोग चर्चों में रहते हुए अपने आप को ये समझ रहे होते हैं कि हम बादशाही का हिस्सा हैं, लेकिन वो आसमान की बादशाही के मयार को पूरा नहीं कर रहे होते। आसमान की बादशाही का मयार बहुत बड़ा है, ये मजाक नहीं है, खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। आसमान की बादशाही को कबूल करना तो आसान है, उसके मयार पर पूरा उतरना, यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई अपनी खुदी का इनकार ना करे, ये आसान रास्ता नहीं है। लोग समझते हैं मसीहियत आसान है, नहीं, ये आसान नहीं है। यीशु मसीह को कबूल करना और फिर उस पर अमल करना, तो दो मुख्तलिफ बातें हैं। बहुत से लोग खुशी खुशी देखा देखी तो बड़े इकरार कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, वादे कर लेते हैं। बहुत से लोग चर्चिज में रोज जाकर वादे करते हैं। जब आप ज़बूर, गीत, प्रस्तिश करते हैं, ये वादे होते हैं जो हम अपनी जुबान से अदा कर रहे होते हैं, खुदा से कलाम कर रहे होते हैं, और फिर हम चर्च से निकलते ही इन वादों को भूल जाते हैं। अब यीशु मसीह ने यह बयान किया, और सुनने वाले जो लोग थे ज्यादातर यहूदी थे, और उनके यहां मछलियों की बहुत सी इकसाम थी। अगर आप पढ़ना चाहें तो इस्तिस्ना में पढ़ सकते हैं पाक और नापाक जानवरों की तफासील। वहां पर उन तफासील में एक तफसील पानी के जानवरों की भी है। वो हर तरह की मछली नहीं खाते थे, और माहीगीरी की ये सनत आज की सनत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहां सनतकार तो थे, उनका बिजनेस था, ज्यादातर लोगों का कारोबार भी वहां पर गुजरान जो थी वो इसी बिजनेस से होती थी। लेकिन आज की ये माहीगीरी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो जाल फेंकते थे, उसमें हर तरह की मछलियां आती थी, और फिर वो नापाक मछलियां जो शरीयत के मुताबिक खाना रवा नहीं है वो उनको फेंक देते थे। अब आसमान की बादशाही को यीशु मसीह आते ही एक बड़े जाल से तशबीह देता है। यीशु मसीह ने अपनी तालीमात के अंदर बेशुमार मर्तबा माहीगीरों का और मछलियों का और माहीगीरी का जिक्र किया है। इस तमसील में उसने आसमानी बादशाही के मयार और जिंदगी पर, आसमानी जिंदगी पर रोशनी डाली, और दुनिया की आखिरत का जिक्र बड़े ही खुशूसलूब अंदाज से किया है। और ये तमसील इतनी आसान नहीं जितनी समझी जाती है, इसीलिए आपको इस तमसील के ऊपर, बड़े जाल की तमसील के ऊपर बहुत कम मैसेज मिलेंगे। ये वक्त है सीखने का, सीखें और इसको समझें। इस तमसील के जरिए खुदा आज भी हमें गहरे पानियों में दावत दे रहा है, वो बुलाता है ताकि हम उसकी आसमानी बादशाही का हिस्सा बन जाए और उन बरकत को हासिल करें जो उसने हमारे लिए रखी है। असर हाजरा में निजात को समझने के लिए आसमान की बादशाही के मेयार को समझना बहुत जरूरी है, और आसमान की बादशाही के मेयार को समझने के लिए यह तमसील बहुत ही कारामद तमसील है। ने कहा कि आसमान की बादशाही बड़े जाल की माने उसको पानी में डालोगे तो हर तरह की मछलियों को समेट लिया और फिर उसको किनारे पर खींच लाए, और जो अच्छी थी उनको तो बर्तनों में जमा कर लिया, और जो खराब थी, बहुत से लोग अपने आप को यह समझते हैं बस हम ही आसमान की बादशाही। अक्सर हम अपने आप की दुनिया में अपने आप को सही समझ रहे होते हैं। हम अक्सर लोग यही गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि सिर्फ वही रास्तबाज है, और दूसरों के छोटे से छोटे और छोटी से छोटी गलतियों को भी अपने अंदर ये लेकर समझ जाते हैं कि शायद खुदा की बादशाही के काबिल नहीं, और ये समझते कि शायद मैं अकेली ही खुदा की बादशाही का हिस्सा हूं। ये बादशाही इस तरह से नहीं है।
यहां पर बादशाही के ताल्लुक से इंतबाह किया गया है कि जाल के अंदर आई तो हर तरह की मछलियां हैं। आसमान की बादशाही की मुनादी हर तरह की कौमों में कर दी गई है। इस दुनिया को बड़े उस पानी की पानी से तशबीह दी गई है जिस पर जाल फेंका जाता है, और सब कौमें, सब कबीले, सब लोग उसको कबूल करते हैं। लेकिन आसमान की बादशाही के वारिस सिर्फ चंद लोग हैं। वो रास्ता जो हमेशा की जिंदगी को जाता है सुकड़ा है, तंग है, और उस पर चलने वाले थोड़े हैं। जो हलाकत को जाता है वो कुशादा रास्ता है, वहां बड़ी अट्रैक्शंस है, वहां बहुत कुछ है। आज चर्चिज के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। उस जाल के अंदर मछलियां तो सब थी, आज चर्चिज के अंदर कलीसियाओं का हिस्सा तो हर तरह के लोग हैं। कलीसियाओं में बहुत से लोग हैं, लेकिन सब खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं बन सकते, ना बनेंगे, क्योंकि उसके मयार को जो पूरा करेंगे, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, वही जिंदगी का ताज पाएगा। यीशु मसीह ने कहा, जान देने तक वफादार रहे। और खुदा की बादशाही का जो मयार है वो यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करना है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आसमान की बादशाही का मेयार जो है वो यीशु मसीह से मुताबिकत रखना है, मसीह की मानिंद होना है। मसीही तो हम कहलाना बड़े शौक से कबूल करते हैं और इसमें बड़ा हम फख्र महसूस करते हैं, लेकिन क्या हम मसीह की मानिंद हैं? अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इस तमसील में वाज़े जो बादशाही का हिस्सा है उसको समझना हमारे लिए अजहद जरूरी है, और वो ये है कि यीशु मसीह और आसमान की बादशाही के मयार पर क्या हम पूरा उतरते हैं, वरना क्या होगा? मछलियों की छांटी होगी। यह भयानक बात है। कोशिश करें कि हम उन छांटी में फेंकी जाने वाली मछलियों का हिस्सा ना बने। आखिर में कब होगा? जब वो जाल पानी में फेंका गया, मछलियां सिमट आई, तो फेंकने वाले और हैं, समेटने वाले और हैं, छांटी करने वाले कौन है? ये तमसील खुद अपनी तशरीह आप कर रही है कि फरिश्ते पर से कि फरिश्ते उनको, यीशु मसीह ने क्लियर किया कि आखिर में ऐसा ही होगा, और फरिश्ते छांटी करेंगे और बाहर कहां डालेंगे? जो बादशाही के लायक नहीं उनको बाहर अंधेरे में डाला जाएगा। उस वक्त बहुत से लोग कहेंगे, खुदा हम तो तेरे नाम से ये करते थे, हम तो बड़े पाबंद मसीही थे, हम तो बड़ा रेगुलर चल जाते थे, बड़े बड़े काम करते थे, बड़ी बड़ी दायकियां देते थे, बड़े हदिया देते थे, नेकी के काम करते थे, हम तो जाकर बड़े बड़े हदिया किया है। लेकिन वो क्या कहेगा कि ए रियाकारो, मेरे सामने से रियाकारी, हिपोक्रेसी, ये आसमान की बादशाही का मयार नहीं है। अब छांटी करने वाले कौन हैं? फरिश्ते हैं। यहां माहीगीर नहीं है, ना शागिर्द छांटी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं छांटी? फरिश्ते। और फरिश्तों को कौन हुक्म देता है? यानी फैसला करना आसमान की बादशाही का ये खुदा के अपने हाथ में है। उसने अपने अख्तियार में रखा है कि कौन उसकी बादशाही का हिस्सा बनेगा और कौन नहीं। इसलिए अजीजों, इस तमसील को थोड़ा सा इस पैराए के अंदर समझे कि यीशु मसीह ने उन लगातार जो पहले 6 तमासील बयान किए, उनके बाद ये 7वीं जो तमसील इस बात के अंदर यीशु मसीह ने बयान की, इसमें उसने इंतबाह भी किया कि खुशी खुशी तो कबूल कर लेना यीशु मसीह को और बादशाही को बड़ा आसान है, लेकिन उसके मयार को पूरा करना इतना आसान नहीं जितना समझा जाता है। और बिलाखिर वो यीशु मसीह ने एक मरतबा यूहन्ना की इंजील में क्या अपने शागिर्दों को कहा कि जब एक बुरी रूह एक आदमी से निकलती है तो क्या करती है? सूखे मुकामों में, बेअबानों में, सूखे मुकामों में क्या करती है? जगह ढूंढती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में वापस जाऊंगी जहां से निकली हूं। और जब वापस आती है तो उसको झड़ा हुआ साफ सुथरा, सारी डस्टिंग हुई, नीट एंड क्लीन, क्योंकि जब कोई यीशु मसीह को कबूल करता है उसके गुनाह धुल जाते हैं, वो नीट एंड क्लीन हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो उसको छड़ा हुआ, साफ सुथरा, बिल्कुल ब्रांड न्यू, हर तरह की गलाजत से पाक पाती है, तो कहती है वाओ दैट्स ग्रेट। तो वो अपने से और 7 बदरुएं साथ ले आती है, और वहां पर एक पार्टी चलती है बदरुओं की, गुनाह की, और उसका हाल पहले से भी ज्यादा बुरा हो जाता है। याद रखें, ये खुदा यीशु मसीह ने इसीलिए इस तमसील के अंदर ये बात जब बादशाही के भेदों को
तो वाज़ेह कर दिया कि खराब मछलियां बाहर फेंकी जाएंगी। ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा जब फरिश्ते आकर लोगों की छांटी करेंगे और जो रियाकार हैं, हिपोक्रेट हैं, मुनाफिक हैं, दोहरे मेयार रखते हैं, खुदा खुदा भी करते हैं और उनके दिल में कुछ और भी बसता है, दो खुदाओं की प्रस्तिश करते हैं, उनको बाहर अंधेरे में डाला जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्राइंग, वीपिंग एंड gnashing ऑफ टीथ। ये बड़ी भयानक बात है। ये बज़ाहिर हल्की बात लगती है, gnashing ऑफ टीथ, वहां पछतावा। gnashing ऑफ टीथ ये बात होती है कि जब कोई काम गलत हो जाए और उसका कोई नेमुल बदल ना हो, उसका कोई रिवर्स ना हो, फिर हाथ से वो काम निकल जाए, दोबारा हो ना सके, इस बात को gnashing ऑफ टीथ या दांतों का पीसना कहते हैं, कुड़ना कहते हैं, क्योंकि उस वक्त बजाय सिवाय कुड़ने के और कोई उसका हल नहीं होता। यानी जब ये वक्त आएगा तब फिर तौबा का मौका नहीं रहेगा, अभी वक्त है। कलाम कहता है ना बेटा बाप का बोझ उठाएगा, ना बाप बेटे का बोझ उठाएगा। जो जान गुनाह करती है सो सजा पाएगी। अपने आप को जांचे। ये हमारी अपनी आगाही के ताल्लुक से खुदा यीशु मसीह की तमसील हमें हमारी जिंदगी पर अपील हो रही है। खुदा की बादशाही उसी बड़े जाल की मानिंद है जो सब कौमों में फैलाई गई और उसमें हर तरह की मछलियां, हर तरह के जानदार, आबी जानदार उसमें सिमट आए और फिर उनको छांटी किया गया। आज भी कलीसियाओं में हर तरह के लोग हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब छांटी किया जाएगा। खुदारा 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 अपने आप को जांचे कि क्या कहीं हम उस छांटी के अंदर उस हिस्से में ना आ जाएं जो बाहर अंधेरे में डाला जाएगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। गो कि ये सख्त पैगाम है, बहुत से लोग इसे सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन अफसोस हमारा अलमिया ही ये है कि हम खुद को रास्तबाज जताकर अपना एनालिसिस, अपना तजजिया करना ही नहीं चाहते। अक्सर हम अपने से इख्तिलाफ राय रखने वाले लोगों को गलत कह देते हैं और खुद को समझते हैं कि हम खुदा की बादशाही में चले जाएंगे। नहीं, जो अपनी खुदी का इनकार करे, कलाम में लिखा है कि वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ें। अपने आप को पौलुस क्या कहता है कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो मुझसे होती नहीं, और जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। जिस गुनाह का इरादा नहीं करता, इसका मतलब है कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। वो कहता है हाय मैं कैसा कमबख्त हूं, इस गुनाह के बदन से, इस कमजोरी के बदन से, इस दुनियावी बदन से मुझे कौन रिहाई देगा। मेरा तो दिल करता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं। अजीजो, ऐसा मेयार है खुदा के कलाम का, आसमान की बादशाही का। अगर ऐसा नहीं तो फिर हम शायद बादशाही के जाल में सिमट तो आए हैं, लेकिन वक्त आने वाला है जब हमारी छांटी की जाएगी। मैं नहीं चाहता, याद रखें खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते छांटी करेंगे। कोई पादरी, कोई बिशप, कोई मुनाद, कोई मुबशर हमें नहीं बचा सकता। उनका काम सिर्फ हमें कलाम का रास्ता दिखाना है। कलाम ने क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या चाहता है, बताना है। हमारा अपना फैसला, हमारा अपना डिसीजन। बहुत अरसे तक मुझे बिली ग्राहम इवेंजेलिस्टिक एसोसिएशन की तरफ से एक उनका मैगजीन आता है, कई सालों से, कई दहाइयों से वो चल रहे, डिसीजन पोस्ट में आता रहा है, और मैं उसमें हमेशा जो कुछ पढ़ता था उसमें एट द एंड एक डिसीजन पढ़ाया जाता। आज मैं चाहता हूं आप भी एक डिसीजन करें सुनने वाले, कि क्या हम अपने आप को जांचेंगे। याद रहे कि ये जो तालीम है, मैं आपको ये इसलिए नहीं दे रहा, मैं यहां पर मेरे अंदर ये बोझ है कि किसी तरह से हम खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाएं, सबके सब हम अकेले ना रह जाएं। मेरा ये बोझ है। मेरा भी दिल करता है घर में रहूं, अभी जॉब के बाद मैं थका हुआ हूं, मेरा भी दिल करता है घर जाके सो जाऊं, लेकिन मुझे खुदा की खिदमत शिकंजे में खींचती है कि मैं किसी तरह से किसी तक कलाम को पहुंचाऊं। अब इस कलाम का मकसद ये नहीं कि मैं लोगों को घबरा दूं, लेकिन इसका मकसद है कि काश हम अपना एनालिसिस करें, अपना तजज़िया करें, अपने आप को जांचे, जाने। कलाम कहता है अगर हम अपने आप को जांचते ना पाते, एक
مختصر سا میسج جیسے اکثر چرچز میں دیا جاتا ہے لوگوں کو ان کی بھلائی کا، خوش رکھنے کا، ایک اچھی خبر دے دی، that's good enough. لیکن وہ وقتی ضرورت ہوتا ہے. ایک لڑکی جب اس کی کہیں شادی ہو رہی تھی تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے کوئی ایڈوائس کر دو، کوئی اچھی ہدایت کر دے شادی سے پہلے. تو اس نے اسے ایک بات کہی، کہتی ہے کہ اگر کسی بھوکے شخص کو تو ایک مچھلی دے گی تو تو اس کی ایک وقت کی ضرورت پوری کرے گی، لیکن اگر تو اس شخص کو مچھلی پکڑنا سکھائے گی تو تو پورے سال کے لیے اس کی بھوک کو مٹا پائے گی. اب اس تعلیم کا، اس میسج کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جانچیں اور اپنے آپ کو ایک اچھے ماہی گیر، آدمگیر بنے اور خدا کی بادشاہی کا حصہ بنے، اور اوروں کو بھی، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کام کرنے والوں کو اچھی خبر پہنچائیں، اور اس طرح سے ہم خدا کی بادشاہی میں بالآخر کسی نہ کسی طرح اپنا حصہ ڈالیں. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. اور نیکسٹ اس کے بعد، اس بڑے جال کی تمثیل کے بعد جو میں اس سے آگے تمثیل آ رہی ہے اس شخص کی جو اپنے گھر کے خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تب تک کے لیے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اس وقت میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کروں. آپ جو میرے ساتھ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ دعا میں میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اپنی آنکھیں بند کریں. خدا یسوع مسیح کے نام میں جلالی وفادار لا تبدیل آسمانی پتا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اختیار کو لیتے ہوئے تیرے کھلے آسمان کے نیچے ان تمام جانوں کے لیے جو بعد میں سنیں گی، خدا ان سب کے لیے سلامتی کی دعائیں خیر چاہتا ہوں. اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں یہ فضل دے کہ ہم تیری بادشاہی کا حصہ بننے کے لیے اپنے آپ کو جانچیں، پرکھیں، اور خدا تیرے کلام کو حاصل کرنے کے وسیلہ سے اپنی خدا زندگی کو کامیاب بنا سکے، کیونکہ تیرے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہی ہمارا مددگار ہے. یسوع کے نام میں ان سننے والی جانوں کے اگر خاندانوں کے اندر خداوند، ان کے ماحول کے اندر، ان کے علاقوں کے اندر خداوند امن کی ضرورت ہے تو یسوع کے نام میں اس امن اور سلامتی کو چاہتا ہوں. اگر کسی کی شفا کی ضرورت ہے میں اس کی جسمانی اور روحانی شفا کو مانگتا ہوں. اگر خاندانوں کے اندر جدائیاں ہیں تو خدا میں ان جدائیوں کو خدا یسوع کے نام میں دور کر کے تمام ملاپ کی خدا تیرے حضور دعا کرتا ہوں، ملتجی ہوں. اگر کسی کی کاروبار کی ضرورت ہے یسوع کے نام میں اس کے کاروبار میں برکت. اگر کسی کو خدا جاب کی ضرورت ہے تو اس کی بے-روزگاری کا علاج کر، کیونکہ تو ہم حل مشکلات ہے. اگر خدا کسی کی پڑھائی کی ضرورت ہے تو اس کے سوچ کا، ذہن کا ذمہ لے، ہر طرح کے برے خیالات اور دنیاوی باتوں سے آزاد کر کے خدا ان کو ان کی ضرورت کے موافق خدا ان کی مدد کر. اپنے محافظ فرشتگان کو ان کی نجات کے لیے، حفاظت کے لیے بھیج، اور اپنے روح القدس کی آگ کو ان کے چوگرد بار کی مانند قائم کر تاکہ ابلیس کے جلتے تیروں کا مقابلہ کر سکے اور تیرے نام کو جلال دے سکے. ساری منت التجا کو سن اور قبول کر یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین. تھینک یو، گاڈ بلیس یو فار یور ٹائم. اور بہت جلد ایک نئی تمثیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے ضرور میرے ساتھ دعا کیجئے گا، میرے لیے دعا کیجئے گا. خداوند آپ کو برکت دے.